Hello everyone, good morning. Welcome back in the revision of number system. So we are going to continue the same thing again. In the first page, whatever we have seen, maybe the same thing will continue in this particular page as well. Over here, we will be practicing more difficult subjects on the first page, as well as some HOTS. HOTS means higher order thinking skill questions. So HOTS will be discussing in the next session, not in this session. So in this session we'll be only separating those HOTS from it, and we'll be keeping it aside. Baki other questions will be completing. So 27th question fatafat will complete it. 27th question is x is equals to 2 plus root 3. I need x square, as we can see here. So here itself I'll write x square. So 2 plus root 3 the whole square, which will be a plus b the whole square. So it will be 4 plus 4 root 3 plus 3, which is going to be equal to 7 plus 4 root 3. Then I need 1 upon x square. So 1 upon x square is equals to 1 upon 7 plus 4 root 3, which needed to be rationalized. 4 root 3, 7 minus 4 root 3, and ultimately your answer here is 7 minus 4 root 3 upon 1, which is the same. I can easily find out adding this and this. That's it. I hope it is very clear. Okay, so I'll just clear this and go for the next one. Next one is finding a root. Okay, so root of x minus 1 upon root of x, the whole square I need to find out. You remember that whenever you root you have to square it. So you get x minus 2 plus 1 upon x. So I'll be finding x and 1 upon x. So x is the same, which is 9 plus 4 root 5 minus 2 plus 1 upon x. That means rationalizing 1 upon this one, 9 plus 4 root 5, it will be 9 minus 4 root 5. 9 minus 4 root 5. You can rationalize and check, it will be the same. Yes. So this and this get cancelled. I get 9 plus 9, 18 plus 18 minus 2, 16. And taking root of this, I get root x minus 1 upon root x is equals to 4, and that's the correct answer. 4 is there. पहले वाले का आंसर 14 आया था क्या? आई डोंट नो यार. अच्छा, वी डिडंट ऐड इट आई थिंक. ठीक है, कोई बात नहीं, 14 आ जाता आंसर, नो प्रॉब्लम. चलो आगे बढ़ते. ये 29 क्वेश्चन नया है. नया इन सेंस इन दिस पर्टिकुलर शीट इट इज़ फर्स्ट टाइम. तो 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6 is equals to a plus b root 6. I have to just compare this two, right? So I have to find a value and b value. So what I can do, I have to keep the same steps but rationalize the denominator. So 5 plus root 6 upon 5 minus root 6 into 5 plus root 6 into 5 plus root 6. Of course that is equals to a plus b root 6. This one you can write on the last step also, there is no problem after this. So the numerator is the whole square, so 5 square 25 plus 10 root 6 plus 6 root 6 the whole square divided by, of course, 25 minus 6, and then this will be 25 plus 6 is 31 upon 25 minus 6, now then 19 ठीक है, plus 10 root 6. So this can be separated, 31 upon 19 plus 10 upon 19 root 6. So if I compare this with this, I get a is equals to 31 upon 19 and b is equals to 10 by 19. I think the answer is right in front of you. ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमने बहुत बार ये किया हुआ है. ठीक है, आप लोग नेक्स्ट भी कर सकते हैं इन द सेम वे. 30th वन, यू नीड टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. इफ़ आई वॉन्ट आई सॉल्व दिस एंड शो यू. तो आई 30 क्वेश्चन चेक कर लो, क्वेश्चन को देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 3 इंटू ब्रैकेट 4 रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 4 रूट 5 माइनस रूट 3. लुकिंग एट दिस टू terms in this particular question as conjugate of each other, एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, आई जस्ट थॉट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाइंग. सो दिस square 4 root 5 the square is 80 minus 3, it is like that. ठीक है, and you are expected to find the answer for a and b which can be equal to, but anyway though that will write later on. ऊपर आएगा
12√5 प्लस 3√3 प्लस 8√5 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 77. 12 plus 8 is 20√5, I think. Plus root 3 upon 77, which can be compared with a root 5 plus b root 3. So here is a is equals to 20 upon 77, I think, and b is equals to 1 by 77. Root 3 is not required there. तो देखते हैं. Yes, 20 upon 77, 1 upon 27, 77. That's it. आ रहा है समझ में आप लोगों को, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन 31st इज जस्ट रैशनलाइज ईच टर्म यू गेट एंड गेट इट added to give you one answer. So that's not a big deal. X is given. 32nd question, if you want I'll solve it. 32nd question, quickly I'll solve it. X is equals to √3 plus 1 upon √3 minus 1. इसको रैशनलाइज करके रखते हैं क्योंकि वी नीड दैट. तो इसको रैशनलाइज किया तो √3 plus 1, ऊपर भी √3 plus 1, which is going to be equal to √3 the whole square plus 2√3 plus 1 upon 2. 3 minus 1 2, right? तो 4 आएगा. 4 plus 2√3 upon 2. We can take 2 common from the numerator. 2 into bracket 2 plus √3 upon 2. This get cancelled. 2 plus √3. Similarly, I need x square, as you can see there. x आ गया. x square भी लाते हैं. x square is equals to इसका द होल स्क्वायर. तो 4 plus 4 √3 plus 3, तो 7 plus 4 √3 is your x square. Similarly, y square I think is going to become सेम ही है, बस मुझे लगता है 7 minus 4 √3 आएगा एज अ y स्क्वायर. और x y आएगा 2 minus √3. ये आएगा y, ये आएगा x, ये आएगा x स्क्वायर, ये आएगा y स्क्वायर. यूज़ करो, हो गया आंसर. x इंटू वाई is equals to 2 plus √3 into 2 minus √3, which can be equal to 4 minus 1 or 4 minus 3. Answer is 1. बहुत सिंपल कुछ नहीं था, है ना. We have done this kind of question, lot many questions we have done. अभी थोड़ा सा और इजी हो गया. देखो, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स. रैशनल ही तो चाहिए, इरेशनल नहीं चाहिए. रैशनल तो बहुत ईजी है. कैसे करते हैं हम लोग, फिर से समझा देता हूँ. 5/7 एंड 9/11. पहले डिनोमिनेटर को सेम करो. सेम करने के लिए यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करते हैं. 55/77 एंड 9 को 7 से करते हैं. 63/77. तो 3 चाहिए ना, तो बहुत सारे हैं. 56, 57, 58 कुछ भी लिख लो. तो आई हैव 55/77 इज लेस दैन 56/77, 57/77, 58/77, and that is 63/77. So we have these 3 numbers between those 2 rational numbers and that's it, done. फटाफट आगे बढ़ते फास्ट. 33rd हो गया. गिव 2 रैशनल नंबर्स हुज डिफरेंस. अच्छा, दोनों रैशनल है लेकिन डिफरेंस भी रैशनल होना चाहिए. तो कोई भी हो सकता है 1 and 2, तो इन दोनों का डिफरेंस रैशनल है. सम इज रैशनल नंबर, सेम 1 and 2. प्रोडक्ट इज ऑल्सो रैशनल नंबर, कोई भी ले लो 1 and 2. डिवीजन इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ओके, 1 and 2. तो सबका आंसर एक ही है, 1 and 2 हो गया. बहुत सारे नंबर्स हैं. ऑलमोस्ट ऑल नंबर्स विल हैव द सेम वे एक्सेप्ट 0. 0 के लिए थोड़ा सा डिवीजन में प्रॉब्लम होगा, बाकी कुछ नहीं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ये मैंने लिया था कि नहीं लिया था याद नहीं आ रहा है मुझे. 33rd B क्वेश्चन. अरेंज इट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मतलब बड़ा पहले. तो वो नंबर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2 दिखाई नहीं दे रहा ठीक से. 4th रूट ऑफ 5, 6th रूट ऑफ 7 एंड 12th रूट ऑफ 3. ठीक है, पता नहीं ये मैंने लिया था कि नहीं लिया था, लेकिन अभी समझा देता हूँ, नो प्रॉब्लम. हमें करना क्या है, इसको पहले पावर में लिखो. तो क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2⁻1/3. 4th रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 5⁻1/4. 6th रूट ऑफ 7 is equal to 7⁻1/6 and 12th रूट ऑफ 3 is 3⁻1/12. करना क्या है, डिनोमिनेटर सबके सेम करने हैं. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम ऑफ 3, 4, 6 एंड 12 इज 12. तो इसको 12 बनाने के लिए 2⁻4/12
4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 3 से करेंगे 5^3/12, इसको 2 से करेंगे तो 7^2/12, और इसको 3^1/12 ऐसे रखेंगे। 1/12 अभी बाहर रखेंगे और जो पावर ऊपर वाले वो अंदर रखेंगे, मतलब 2^4^1/12, 5^3^1/12, 7^2^1/12 and 3^1/12. So this gives me a way to compare. तो 2^4 is 16^1/12, 3 cube is 3 cube है ना, बराबर है ना 3, हाँ 125^1/12, 49^1/12 एंड 3^1/12। तो सबसे बड़ा हो गया ये वाला फर्स्ट, तो दिस विल बी द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड हियर इज द फोर्थ। डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, फिर से वीडियो देखो इफ यू वांट टू चेक इट। नेक्स्ट वन 38, फटाफट कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 38 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। मैं एक दिखाता हूँ, बाकी आप लोग खुद से करो। कौन सा वाला दिखाता हूँ मैं? 2 × 4√81। तो 81 को फैक्टराइज करो, जैसे हम लोग मिक्सड करते थे वैसे ही कैटेगरी का है, थोड़ा सा अलग है। तो ये हो जाएगा 3 2 6 3 7 3 3 3 ऐसे हो जाएगा। तो जितना पावर है देखो, 2 × 81^1/4 हो जाएगा, यही है ना, ये समझ लो। सो 2 × 3^4^81, राइट, (1/4). तो बस हो गया ना, 3 × 2 6 हो जाएगा ये, ठीक है। 8 - 8 क्यूब रूट ऑफ 216, तो ये मुझे लगता है 6 का क्यूब है। इफ़ आई factorize it, I will realize that it is a cube of 6. So -8 6^3^1/3, 3 get cancel, 48। तो ऐसे ही बाकी भी कर लो कंप्लीट, यू विल अंडरस्टैंड इट। नहीं आ गया तो फिर से बता दो, आई गिव यू द आइडिया और सॉल्व इट कम्प्लीटली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी आप लोग खुद से कर सकते हो। 39 इवेल्युएट, ये हमने किया था, ये भी सिंपल है। 40th वाला लगने के लिए बस डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन समझा देता हूँ मैं आपको, डोंट वरी। तो हियर वी हैव 2⁻⁻1 × 3^2 divided by 2² × 3⁻⁻4 whole is been divided by 7/2 into 2⁻⁻2 into 3⁻3 upon 2⁻3 into 3⁻5 and all that (5/2). तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो इनसाइड है उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2⁻1 - 2 नीचे से ऊपर गया, इंटू 3⁻2 + 4 ऊपर माइनस होके ऊपर चले गया, माइनस का उल्टा साइन। ऑल दैट इज बिन गिवन द पावर ऑफ 7/5 इंटू 2⁻5 -2 -3 इंटू 3⁻3 + 5 (5/2). So we get here is 2⁻³ into 3⁻6 (7/5) into 2⁻5 into 3⁻8 and (5/2). So I will give this sign, this power as in form of a multiplication. गया नहीं है, as in form of a multiplication. So I get this as 2⁻7 into 3, so -21/5 into 3⁻42/5 into 2⁻25/2 into 3⁻, it will be -40/2। अभी इसका और इसका एडिशन हो जाना चाहिए। अरे ये 7/5 नहीं है, यहाँ पे 7/2 है। 5 किसने लिखा है यहाँ पे? किसने लिखा है ये 5? ये 2 है। तो वही मैं सोच रहा हूँ इतना वियर्ड कैसे आंसर आ रहा है। एनीवे आगे, तो 21/2 और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो इट इज़ 2⁻4/2
इंटू 3⁻40 माइनस से होगा प्लस होगा, ये माइनस साइन होगा यहाँ पे, तो इट विल बी 42/2. तो इट इज़ 2⁻2 इंटू 3⁻1. आंसर तो आपको इवेल्यूट हो जाएगा. सिंपल है, कुछ नहीं था, बहुत ईजी था, राइट. ये आप लोग खुद से कर दो, शो दैट वाला. ये तो हमने वर्कशीट में भी किया है, ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. 42nd देख लो ज़रा. 42nd जो है वो काइंड ऑफ HOTS कैटेगरी में आता है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ या नहीं, ठीक है. HOTS में हम लोग कर लेंगे, मतलब कल करेंगे. 42nd, 43rd, 44th, 45th, ये जो 4 क्वेश्चन है ये हम लोग कल 100% एज ए फॉर्म ऑफ HOTS कंप्लीट कर देंगे. बाकी कंप्लीट कर देते हैं, मतलब वो छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे. दिस इज़ द वे हाउ यू शुड ऑल्सो हैव गॉट अ काइंड ऑफ टेंडेंसी. ऐसे नहीं होता कि हर एग्जाम डिफिकल्ट होता है. मैं बोल रहा हूँ इवन इफ यू कुड एबल टू सॉल्व 50% ऑफ दिस, तो भी इजंट इट, डोंट यू थिंक कि आपका 50% काम खत्म हो गया. तो यही तो है बात मैं बोल रहा हूँ. जब भी मैं कुछ होमवर्क देता हूँ तो 50% डिफिकल्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम 50% डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता. मैक्सिमम आउट ऑफ 50 10 क्वेश्चन, मतलब 1/5 ऑफ क्वेश्चन विल बी डिफिकल्ट. तो वो तो मैं करवा के दे ही रहा हूँ, बाकी तो आप लोग खुद से कर दो. यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो 46 हमने किया हुआ है, मैं नहीं अभी अननेसेसरी टाइम वेस्ट करूँगा. ये आपको खुद से करना पड़ेगा. टेकिंग √2 एज दिस वन, इवेल्यूएट दिस. तो इवेल्यूएट करने के लिए 1/√2 प्लस पाई ऐसा है. पाई की वैल्यू तो हम लोग पुट कर देंगे वो, लेकिन √2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे. जिसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो इट विल बी √2/2 प्लस पाई. प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर, नेवर पुट द irrational नंबर वैल्यू इन द डिनोमिनेटर. ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू पुट इट इन न्यूमरेटर. तो ये होगा 1.414 डिवाइड बाई 2 प्लस 3.141. तो 2 1 2, 0.7 0 and 7 ऐसे कुछ तो हो रहा है, ठीक है ना. तो वी हैव 0.707 प्लस 3.141, 7 + 1 8 4 8 3 3.848. वही आंसर है क्या? अच्छा, यहाँ पे आंसर नहीं दिया है. कुछ क्वेश्चन के लिए आंसर अननेसेसरी नहीं दिया है मैंने, क्योंकि वो ऑलरेडी यू ऑल आर डूइंग इट, ऑल हैव डन इट. ये देखो फिर से 48 आ गया, वही है. तो अननेसेसरी वाई टू गिव यू द आंसर्स देयर. ये थोड़ा सा वियर्ड कैटेगरी है. रूट अच्छा, वो होल ब्रैकेट क्यूब करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल है. होल ब्रैकेट क्यूब बाद में करो ना, पहले x + 1/x, x - 1/x की वैल्यू पुट करो. x है मेरे पास √2 - 1, 1/x होगा 1/√2 - 1, विच कैन बी आफ्टर रैशनलाइजिंग √2 + 1 हो जाएगा. ये तो आपको अभी पता चल गया है, ठीक है ना. अभी x - 1/x द होल क्यूब इज इक्वल टू x क्या है, ये वाला है, मतलब क्या, √2 - 1 माइनस ऑफ √2 + 1 एंड होल क्यूब. ये माइनस ऑफ क्यों है समझ में आ गया होगा आपको. तो √2 - 1 माइनस √2 - 1, ठीक है ना. तो √2 एंड √2 विल गेट कैंसिल. आई गेट -2 द होल क्यूब इज -8, क्योंकि क्यूब तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव होता है, ठीक है. कीप दैट इन माइंड. चलो हो गया, दैट्स इट. चलो इरेज कर देते हैं. बहुत इजी है, क्यूब है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. ये तो सेम क्वेश्चन है. 50 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी HOTS है, तो इसको हम लोग बाद में करने वाले हैं. ये है अपना 5th क्वेश्चन ऑफ HOTS. बाकी सेम है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. हाँ, 51 क्वेश्चन देखो ठीक से. 51 थोड़ा सा वियर्ड कैटेगरी है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वो रॉन्ग है. तो 1/, आई टेल यू, √2 + √3 माइनस √4 की जगह पे √5 होना चाहिए था. रिमेंबर दैट, क्योंकि इन दोनों का एडिशन हैज़ टू बी इक्वल टू इसका एडिशन, मतलब 2 + 3 शुड बी इक्वल टू 5. तो ये इक्वल होना चाहिए, तभी ये रैशनलाइज क्विकली हो जाएगा. ये भी रैशनलाइज होता है, 51 जो है वो भी रैशनलाइज हो जाता है. आपके सिलेबस के लिए वो नहीं है, तो अगर आपको चाहिए तो वो भी ट्राई करके देख लो. मैं ये सॉल्व करता हूँ जो है मैंने लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये इट विल बी √2 + √3 + √5 एंड ऊपर भी √2 + √3 + √5. यू नो दिस, ओके. तो 3 नंबर को ऐसे ही करते हैं, फैक्टराइज, सॉरी रैशनलाइज. तो इट विल बी √2 + √3 + √5 डिवाइडेड बाय द होल स्क्वायर, √2 + √3 द होल स्क्वायर माइनस √5 द होल स्क्वायर. दिस एटलीस्ट यू मस्ट नो. तो ये हो जाएगा √2 + √3 + √5 डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर हो जाएगा 2 +
2 रूट 6, राइट, रूट 2 प्लस, सॉरी, हाँ रूट 2 स्क्वायर तो करेक्ट है ना, ऐसे ही मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है, प्लस 3 माइनस 5, तो ये 5 और ये 3 ऑल गेट कैंसल एंड आई गेट रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 रूट 6। तो इसको अगेन रूट 6 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड रूट 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो व्हाट डू आई गेट, 6 2 ज़ा 12 रूट 12 प्लस 6 3 ज़ा 18 प्लस 6 5 ज़ा 30 एंड द आंसर इज हियर 6 2 ज़ा 12। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रैशनलाइजिंग वे, दैट्स इट, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये भी आप लोग चाहिए तो ट्राई कर सकते हो, राइट नाउ ज़रूरत नहीं इसलिए मैंने नहीं किया। चलो 51 हो गया, चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं। ये हमने किया हुआ क्वेश्चन है 50 सेकेंड यार, मैं आपको भी सॉल्व करने के लिए दिया था, एक बार देख लो। करना क्या है, 10 रूट 10 का कुछ नहीं होता, लेकिन रूट 20 को हम लोग मिक्सड में कन्वर्ट करते हैं, रूट 40 को करते हैं, रूट 5 कुछ ज़रूरत नहीं है, रूट 80 को करते हैं। सबको करने के बाद मिक्सर में करने के बाद आपको कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है उसमें से, और उसको रैशनलाइज करना है, दैट्स इट, कॉमन निकाल के। चलो इफ़ यू वांट आई विल ट्राई दैट क्वेश्चन। रूट 10 रहेगा, रूट 20 इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20 4 5 ज़ा, सो 2 रूट 5, रूट 40 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 4 या फिर 16 नहीं है, 8 5 ज़ा 40 कुछ नहीं है, 10 इंटू 4 सो 2 रूट 10, रूट 5 तो रूट 5 रहेगा, रूट 80 इज 16 5 ज़ा, सो 4 रूट 5 इज इक्वल टू रूट 80। तो वो जो नीचे वाला है वो ऐसे बनेगा 15 अपॉन रूट 10, रूट 10 ये रहा रूट 10, ये रहा रूट 10, ओके, सो इट इज़ माइनस सॉरी 3 रूट 10 प्लस या माइनस डोंट नो, रूट 20 हो गया, 2 रूट 5 माइनस रूट 5 इज माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 एंड माइनस 3 रूट 5 हो गया, 3 कैन बी टेकन कॉमन, रूट सॉरी 15, 3 इंटू ब्रैकेट रूट 10 माइनस रूट 5, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15, तो 5 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 5 इज योर, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, रूट 10 प्लस रूट 5 एंड देन डन, योर आंसर इज डन। तो ईजी है ना, बहुत सिंपल था, ठीक है। ओके एनीवे आगे बढ़ते हैं, ट्राई करो बाकी क्वेश्चंस को आज ऐसे खुद से जितना करोगे उतना जल्दी समझ में आने शुरू हो जाएगा। 55th क्वेश्चन आपको न्यूमरेटर अलग से फाइंड करना है, डिनोमिनेटर अगर अलग से फाइंड करना है एंड देन उसको डिवाइड करना है। लगने के लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन है बहुत सिंपल। तो जैसे मैंने इससे पहले भी इस कैटेगरी के क्वेश्चन किया था, लेकिन ऊपर वाला ही था, सिर्फ न्यूमरेटर था इन 55th क्वेश्चन, डिनोमिनेटर इज एडेड एक्स्ट्रा हियर, तो व्हाट यू हैव टू डू, न्यूमरेटर सेपरेटली सॉल्व करो, डिनोमिनेटर सेपरेटली सॉल्व करो और फिर उसको डिवाइड करो, काम खत्म, दैट्स इट। तो देखो ट्राई करो, और ज़्यादा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हम लोग कल भी कर लेंगे एज अ HOTS एंड टॉपिक को दी एंड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। I think in a bargain of completing these all things or worksheet, I hope you are revised the complete topic, the complete section itself. So thank you so much. Bye bye. See you tomorrow.